Hi, once again we are back on एक बूंद सोच की टी टॉक ट्रेन ऑफ थॉट। इस मंच पर हमेशा कोई ना कोई ऐसी पर्सनालिटी आती है जिनके थ्रू हमें कुछ मैसेज मिलता है समाज के लिए। वी कवर दी स्टोरीज ऑन लीडरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप, even young achievers, the people who struggles in their life would like to share some learning, some stories over here. And we also cover the hidden talent, voice tea talk, where the people they come and sing the song on this particular platform. ये मंच साधारण लोगों का मंच है जो अपना एक्सपीरियंस साधारण लोग से शेयर करते हैं, साधारण लोगों के लिए शेयर करते हैं। तो ये ओपन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लाइक whatever experience you have got, you need to express freely on this platform. Today we are having with us Mr. Johan Arora. He is a Playmake over. That's his organization which is there. And then also he's another organization, The Jogi, which we talk in terms of the mental health and the mindful exercise which are there. We are part of an COVID-19. In couple of years, we have seen the lot of stress level which do exist, and there are a lot of personal and the professional challenges and the problems which do exist. Now, since the presence of Mr. Johan Arora, who is known better as The Jogi, we'll try and listen from him about his experience as far as life which goes. Mr. Jogi, welcome to Tea Talk platform. Thank you so much. Tell audience something about Johan Arora, or glimpses of your profile for them to know like. So I am Johan Arora, born and brought up in Mumbai, and I have done my masters in human resources in Mumbai, and after working for 3 years in the corporate, I shifted my career into becoming a makeup artist. And I have been working as a makeup artist since 10 to 12 years now. And on this journey of becoming a makeup artist, I also realized the importance of inner beauty than outer beauty. And that is when I decided that I need to teach people how to feel beautiful inside with looking beautiful on the outside. And so I also became a yoga instructor, and I've been teaching yoga since a few years now. Okay, now we talk in terms of the makeup artist, Play Makeover, his organization, from outside and then from within The Jogi. Like ये शिफ्ट कैसा लाइक फ्रॉम से मेक हेयर एंड मेकअप आर्टिस्ट टू दी जोगी, एंड पहले यू आर बैलेंसिंग बोथ दी ऑर्गेनाइजेशंस, कैसा करते हो आप? So when I was after my MBA, I got into a job like every other person decides that after doing my masters I will get a job and we will climb the corporate ladder. And I was working for 3 years. I worked in different companies, and on the last company that I worked, there were a few months which made me introspect that if I want to do this for the next 30-40 years, is this the kind of life that I want to live? Okay. And I love personally HR as a subject, as a career, but it was just the corporate setup which was not really matching my personality. Because I'm someone who's always jovial, and I want to do things with a happy spirit, happy mind. And in the corporate you are expected to be serious all the time. So I somehow felt that I don't want to live my life like this for the next 30-40 years. And I just started looking for what else could I do in life. And then I have a brother, so I kind of consulted him also, and some mentors that I have in life. And I realized that I wanted to do something creative which needed more of colors, more of expression of creativity. And makeup was something that I really felt attracted to. And
because someone had suggested me, my brother suggested that, you know, why don't you try this? I really felt that if I keep thinking about is this right or wrong, I will end up not doing anything. So I thought, okay, let me just do it and see if I really like it or not. And that was one moment which taught me that, you know, if you want to do anything different in your life, you have to have that leap of faith. You have to jump into it. सो एक बूंद सोच की जहाँ पे लाइक आपको लगा नहीं, अपने आप में विश्वास होना चाहिए और आप उसको कर सकते हो. जी. या और फिर मैंने सोचा कि यू नो उसको करके डिसाइड करना है कि ये सही है कि नहीं. हम बाहर रह के अगर हम सोचते रहे कि ये है कि नहीं तो हमें कभी नहीं पता लगेगा. तो इट्स लाइक, यू नो, वन ऑफ माई फ्रेंड टोल्ड मी कि अगर स्विमिंग सीखनी है तो पूल में जंप करना पड़ेगा. अब बाहर खड़े होके नहीं सोच सकते कि मैं कितनी अच्छी करूँगा कि नहीं. तो आई jumped into learning makeup, and it was a 2-3 month program which I was able to finish in 20 days. And I loved learning makeup so much that I really felt that, you know, I have found my passion. And I would spend the full day, maybe 10-12 hours just doing makeup, and I would not realize the time. And that is when I felt, you know, this is something I can do in my life. And I think passion is something which drives you on its own. You don't need any external factor to do that thing, whether it's money or of course those are important, but that is not a driving force. Your passion itself is the driving force. But एक चीज़ ऐसी होती है, like, you know, most of the students, they get attracted towards the glamour world, like, you know, since you're into hair and makeup artist and you did various like, you know, makeup for various prominent personalities, so somewhere you got derailed by looking at the glamour world, like your right fit out over there. So to be very honest, there was a little bit of attraction. वो थोड़ा तो लगता है कि, you know, ये इंडस्ट्री इतनी ग्लैमरस है, यहाँ पे बस पार्टीज होती है और you can wear whatever you want and बहुत मज़ा आता है, and it is all fun. But to be true, this is not a very easy industry to get into. क्यों? क्योंकि इसमें भी काफ़ी अपने ही स्ट्रगल्स हैं. आई थिंक हर एक फील्ड में अपने स्ट्रगल्स होते हैं, तो इसमें भी हैं. फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, एज अ मेकअप आर्टिस्ट आपकी स्किल परफेक्ट होनी चाहिए. आप कोई भी टाइम कभी भी आप मेकअप कर रहे हो तो अब उसमें कोई चूक नहीं कर सकते. यू कैनॉट गो फॉल्टर इन एनी टाइम. स्किल सेट विच आर रिक्वायर्ड. सेकेंड, you also have to, I personally realized the value of time, because as a makeup artist I had to be before time. I had to finish things on time. I can't delay, because if I delay the whole shoot gets delayed. So your importance as a member of that team is so important, because you are not working in isolation. You are working with the whole team. Your work is dependent on how the pictures will come. So the photographer is dependent on you. You are dependent on the photographer. So it's the whole team that works together. बट आपका जैसा आपने मैनेजमेंट किया, एचआर स्पेशलाइजेशन, कभी ऐसा आजकल के मैनेजर स्टूडेंट्स का ख्वाब रहता है, आई गो टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, वर्क इन दैट कॉर्पोरेट एंड आई गो लाइक, यू नो, आई अमंग इन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन विच आर देयर, दिस इज द रोल व्हाट आई एम गोइंग टू प्ले. आपने 3 साल शिफ्ट करके कॉर्पोरेट से, एंड यू वांट टू बिकम द मास्टर ऑफ योर ओन दिस थिंग एज एन एंटरप्रेन्योर. बट व्हाई ओनली हेयर एंड मेकअप आर्टिस्ट, व्हाई नॉट एनीथिंग एल्स? So when I thought of any criticism from people saying यार MBA करके आप कहाँ पे ये क्या कर रहे हो? तो इनिशियली तो बहुत स्ट्रगल्स थे. आई थिंक अगर आप जिस दिन आप अपने दिल की सुनते हो तो सबसे पहला पड़ाव जो पार करना होता है वो है लोग क्या कहेंगे. What will people say? Because we are so used to following people's opinion, and it is so important to us, and we want to do what people think is right for us. So I think that is the first obstacle that you have to overcome, is
if you feel it is right, you don't have to explain it to others. That's it. That's the reason Joy Arora is there as a hair and makeup artist. Like, you know, it's not bother after doing an MBA in HR. I'm getting into a particular field, which again is a great field. It's a great creativity which is required over there. But tell me, like, now you have shifted the gear. You are part of this hair and makeup artist. But आपने gear योगा एंड फिटनेस ट्रेनिंग में कैसा शुरू किया था? हम जब भी रिसर्च किया था हमने ये भी उसमें से पाया कि आपने 2008 से आप योगा कर रहे हो, बट उसको एज अ प्रोफेशन हाउ यू मेड दैट एज योर फर्स्ट लव? So yoga तो I've been doing, it's been a part of my life since many years. And मैं मेकअप आर्टिस्ट भी था इतने टाइम से. But to be very honest, when I look on my life in the past, I think अपनी लाइफ के कोई भी एस्पेक्ट में ग्रो करने के लिए more than your skill set, your technical skills, it is the soft skills that are more important. मेरे हिसाब से अगर आप कोई भी फील्ड में हो, चाहे वो कॉर्पोरेट हो, ग्लैमर हो, कुछ भी हो, या अपना खुद का बिजनेस भी कर रहे हो, तो जो चीज़ें आपको हेल्प करेगी ग्रो करने के लिए वो है कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव थिंकिंग, लेस स्ट्रेस, गुड डिसीजन मेकिंग, क्लैरिटी ऑफ थॉट. तो ये सब चीज़ें हम सबको पता है कि ये ज़रूरी है, बट किसी को आज तक ये सिखाया नहीं गया कि ये चीज़ें कैसे लानी है अपनी लाइफ में. जैसे स्कूल कॉलेज में भी मुझे याद है, जब हम स्कूल कॉलेज में थे तो हमें बोलते थे यू नो बी कॉन्फिडेंट, थिंक पॉजिटिव. बट हाउ डू यू थिंक पॉजिटिव? बिकॉज आसपास तो बहुत सारे लोग हैं पीछे पुल करने वाले, रोकने वाले, स्ट्रेस है काफ़ी है. एंड इन अ सिटी लाइक मुंबई ट्रैफिक भी स्ट्रेस दे देता है. तो उस स्ट्रेस को आप कैसे कम करो? अभी हमें लाइफ में बहुत कुछ करना है, हमारी फैमिली है, जॉब है, पैसे कमाने हैं, घूमने भी जाना है, मज़े भी करने, तो वी ऑल नीड एनर्जी फॉर दैट. बट स्ट्रेस हमारी एनर्जी खा लेता है. तो वो एनर्जी मैं एक्सप्लेन जब करता हूँ लोगों को, तो मैं ऐसे समझाता हूँ कि आपकी गाड़ी एकदम टॉप क्लास गाड़ी है और फुल्ली ऑटोमेटिक, एवरीथिंग इज परफेक्ट, बट अगर गाड़ी में पेट्रोल नहीं है तो वो गाड़ी का कुछ काम नहीं है, वो गाड़ी कहीं नहीं जा सकती. करेक्ट. तो अगर आपको गाड़ी को आगे बढ़ाने तो सबसे पहले फ्यूल डालना होगा. फ्यूल डालना चाहिए, और जितना फ्यूल होगा उतनी दूर जाएगी गाड़ी. तो द मोर फर्दर यू वांट टू गो इन लाइफ, द मोर एनर्जी विच इज फ्यूल फॉर आवर बॉडी यू नीड. बट हमें किसी ने नहीं बताया कि ये एनर्जी कैसे आएगी. और हमें किसी ने बताया कि क्या खाओ क्या मत. ये सब बेसिक, मेरे हिसाब से जो बेसिक लाइफ स्किल है, ये हमें बताया नहीं गया है. और हम लोग इंटरनेट में पढ़ने लगते हैं और करने लगते हैं, जो विच इज़ नॉट द राइट वे टू डू इट. और इस हिसाब से योगा ने मुझे ऑल थ्रू माई जर्नी, इवन इन ड्यूरिंग अ मेकअप आर्टिस्ट, मुझे ये सब चीज़ों को सीखना और अपनी लाइफ में इंकलकेट करने को बहुत हेल्प किया है. जैसे मैं जब मेकअप के लिए भी जाता था शूट पे, तो हमारे आवर शूट्स लाइक 12 आवर्स 16 आवर्स का शूट होता है, तो 12-16 घंटे खड़े रहना है आपको. तो ज़्यादातर मेरे आसपास के लोग हैं वो मुझे यही बोलते थे कि तू 12 घंटे में इतना एनर्जेटिक कैसे है, मतलब तेरे मुंह में थकावट नहीं है, यू डोंट फील टायर्ड, यू आर स्टिल वेरी हैप्पी एंड पॉजिटिव एंड यू आर रनिंग अराउंड. और फिर नेक्स्ट डे 4 घंटे सो के नेक्स्ट डे शूट पे जाना फिर से, तो द सेम एनर्जी, द सेम फ्रेशनेस. सो ये सब मुझे इसलिए मैं कर पाया बिकॉज आई वॉज प्रैक्टिसिंग योगा ऑन द साइड. वो मेरा एक लाइफ का पार्ट है. जैसे हम सुबह उठ के ब्रश करते हैं, हम लोग कभी नहीं भूलते ब्रश करना, तो वैसे ही सुबह उठ के थोड़ा सा योगा प्राणायाम करना ही मेरा पार्ट है लाइफ का, विच कीप्स मी गोइंग, विच कीप्स मी फ्रेश. नहीं तो क्या होता है कि अक्सर आप शूट में देखेंगे कि क्योंकि पूरे दिन का शूट है, लोग इतने डल हो जाते हैं कि फाइट्स होने लगते हैं, कभी झगड़ा हो जाता है छोटी सी बात पे, जो दिस इज ओनली रिलेटेड टू स्ट्रेस, कुछ रीज़न नहीं है. तो उस तरीके से एज अ मेकअप आर्टिस्ट ये भी याद रखना बहुत ज़रूरी था मेरे लिए कि मैं जो भी लोगों से डील कर रहा हूँ, तो मैं या तो शूट में कोई मॉडल से डील करूँगा, या तो मैं शादी में दुल्हन से डील करूँगा,
अभी ये दोनों के सिनारियो लाइव जो पोजीशन में हैं, अभी वो कोई शो में है या कोई अपनी शादी में है, दोनों के लिए वो मोमेंट बहुत स्ट्रेसफुल होता है। दे आर वेरी स्ट्रेस क्योंकि बहुत कुछ चल रहा है आसपास। करेक्ट। और सबकी नज़र भी उनमें है, तो और स्ट्रेस। तो आपके क्लाइंट्स आर ऑलरेडी स्ट्रेस, तो अगर मैं एज अ मेकअप आर्टिस्ट भी उनकी स्ट्रेस में ऐड करूँगा तो वो नेक्स्ट टाइम नहीं बुलाएंगे। इट विल बाउंस बैक। और ये भी हो सकता है कि उनकी स्ट्रेस की वजह से वो आप पे चिल्ला दें या कुछ बोल दें जो वो बोलना नहीं चाहते, बट स्ट्रेस की वजह से वो बोल सकते। तो उस टाइम पे कैसे पेशेंस रखना है, अपना अंदर कैसे धैर्य रखना है, तो ये सब चीज़ें जो स्किल्स हैं ये योगा से ऑटोमेटिकली आती है। ये जो आपने 2008 से योगा कर रहे हो, देन यू आर पार्ट ऑफ एन हेयर एंड मेकअप आर्टिस्ट, इसने आपको कहा ना कहा मतलब कैसे हैंडल करना है सिचुएशन को अच्छे से मतलब बता दिया है। यस, कोई भी तरीके के लोग, कैसे भी तरीके की सिचुएशन से आप निकल भी सकते हो और आप उसको चेंज भी कर सकते हो। सो यू नीड टू कीप अ बैलेंस माइंडसेट व्हिच इज देयर। और जस्ट टेल मी, एक बूंद सोच की आपका द जोगी कैसा इन्वॉल्व हुआ? लाइक एक बहुत अच्छा नाम रखा है आपने, द जोगी। व्हाट इज एन फिलॉसफी बिहाइंड दैट पर्टिकुलर नेम? लाइक हाउ इट हैड इवॉल्व, लाइक यू नो? सो वेरी स्मॉल स्टोरी बिहाइंड हाउ आई got inspired for teaching yoga is जब मैं मेकअप करता था लोगों का, अभी भी करता हूँ जब, तो मैं जब मेकअप करता था तो बहुत मॉडल्स भी होते थे और वो मॉडल्स आर वेरी गुड लुकिंग ऑटोमेटिकली, इसलिए लोग देखने आ रहे हैं उनको। तो ऐसे काफ़ी बार हुआ था कि जब मैं मेकअप कर रहा हूँ तो वो मॉडल्स शीशे में देख के अपनी कंप्लेन करते जा रहे हैं कि अरे मेरा फेस ऐसा नहीं है, मेरे बाल ऐसे नहीं हैं, ऐसे होते तो ज़्यादा अच्छा होता। और मेरे मन में ये चलता था कि ये ऑलरेडी इतना गुड लुकिंग है, सब कुछ है, इसलिए लोग देखने आ रहे हैं और ये खुद इसको नहीं लगता कि ये खूबसूरत है। तो फिर मैंने सोचा कि ये खूबसूरत लगना इट इज़ एन इनसाइड थिंग, इट इज़ नॉट एन आउटसाइड थिंग। आप बाहर से कितना भी मेकअप कर लो, ज्वेलरी पहन लो, अच्छे कपड़े पहन लो, बट अगर आप खुद से अपने आप के बारे में पॉजिटिव नहीं सोच सकते, ऑल दीज थिंग्स विल नॉट हेल्प। और ये बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी है बिकॉज मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ और मैं खुद बोल रहा हूँ कि मेकअप आपको एक तरह से खूबसूरत दिखा सकते हैं, बट खूबसूरत अंदर से लगना एक अलग चीज़ है।